Hello everyone, welcome to the new chapter. Name is probability. Chapter number 5, Maharashtra textbook. Okay, part 1 algebra. In this video we will cover the introduction part. What is like this is new term for you. Okay, you may heard in your day-to-day life, but in textbook or in bookish language it is new term. In mathematical language it is new term for you. So we will see what is introduction, and we will also complete practice set 5.1. Okay, there are like 4 to 5 practice set. So in this video we will cover practice set 5.1. Okay, so let's begin with introduction. Okay, so probability. Before understanding, let's see some similar word that you may heard, like possibility. Okay, possibility is the word that we use regularly, like if there is a cricket match is going or football match is going, like for example the match is going between India and Pakistan. So we say, yeah, we see the condition, and we see the history, we see the present condition, player name or the pitch condition, and then we see that yeah, India have 70% winning percent, Pakistan have 30, or we can say Pakistan have 50-50%. Like we say possibility, or there are two possibility, there are three by two possibility. So we use term like possibility, we use term like maybe, we use like impossible term. Yeah, sometimes we use like if the possibility is zero. Yeah, if possibility is zero, like for example in today match there will be a no rain. Yeah, so then we will use like it is impossible that rain will be arrived to in today match. Yeah, so we also use to show 0%, we use the word like uh, impossible. Then we also use nearly sure, 50-50. If there is chance of 50-50, we use the 50-50 term. And there is like a lot of word. Yeah, some word I have presented here. Now we will going to analyze word called possibility. Okay, we will not analyze, we are just going to discuss few minutes on word possibility, because this word is a very known word, or we will use multiple time. तो we will see basically example of possibility. Okay, तो मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया पॉसिबिलिटी का, क्रिकेट मैच परसेंट ऑफ विनिंग ऑफ अ टीम. ओके, हम ऐसा दिखाते हैं तो पॉसिबिलिटी हम बोलते हैं देयर इज 20% पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ इंडिया टुडे. तो ऐसा हम बताते हैं, परसेंटेज में भी बताते हैं. फिर पॉसिबिलिटी हम एक रिजल्ट बताने के लिए, बेसिकली ये सब रिजल्ट ही बताने के लिए करते हैं. लेकिन एक एक्सपेरिमेंट जब करते हैं हम कोई भी, जैसे कि एक हेड होगा. ओके, टॉस हो रहा है क्रिकेट मैच में, तो एक पॉसिबिलिटी कि एक हेड आ सकता है, तो एक टेल आ सकता है. तो इस कंडीशन में कितने टोटल पॉसिबिलिटी, देयर आर टू पॉसिबिलिटी. ओके, व्हेन आई टॉस द कॉइन देयर इज टू पॉसिबिलिटी. ओके, एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि मुझे जाना है, मुझे घूमने को जाना है, और देयर आर 5 प्लेस. कितने प्लेस है? 5 प्लेस है. मुझे इंडिया में किधर भी घूमना है, 5 प्लेस है. तो पॉसिबिलिटी कितने टोटल? देयर आर 5 पॉसिबिलिटी. तो बेसिकली पॉसिबिलिटी का मतलब क्या, कितने नंबर प्रेजेंट है. ओके, कितने नंबर्स प्रेजेंट है. जैसे कि इधर हेड और टेल, तो कितने नंबर प्रेजेंट है, एक हेड है, टेल है, मतलब 2 नंबर है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी. इधर मुझे 5 प्लेस घूमने जाना है, तो देयर आर 5 पॉसिबिलिटी. ओके, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक टर्म देखते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट आर अननोन इन एडवांस. ओके, बट नन ऑफ देन कैन बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी. ओके, तो देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कि टॉस कर रहे थे तो ये एक्सपेरिमेंट ही हो गया. ओके, लूडो खेलना एक्सपेरिमेंट हो गया, ताश कार्ड खेलना एक्सपेरिमेंट हो गया. तो कोई भी इवेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. ऐसा एक्सपेरिमेंट जहाँ पर हमें रिजल्ट पता होता है, वी ऑलरेडी नो द रिजल्ट, we know the result, like when before tossing we know the result that there are two possibility, head or tail. हमें पता रहता है कि ये दोनों में से कोई आएगा, इन दोनों के अलावा थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं. तो वी नो द रिजल्ट, रिजल्ट हमें पता है हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन परफेक्टली नहीं पता है. वी डोंट नो परफेक्टली, हम परफेक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हाँ पता है रिजल्ट इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन पता नहीं कि कौन सा आएगा. सेम, मुझे 5 जगह पर घूमने जाना है, मेरे पास 5 चॉइस, मैं जाऊँगा लेकिन इन 5 में से ही जाऊँगा, लेकिन पता नहीं कि कौन से. मतलब आई नो द रिजल्ट, आई नो द ऑल द रिजल्ट, बट आई डोंट नो द परफेक्ट वन. ओके, समझ रहा है. ओके, एकदम परफेक्ट वाला, एकदम सही वाला नहीं पता है, लेकिन हाँ ऑल पॉसिबिलिटी पता है. इधर 2 पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी पता है. इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट का आउटकम भी होगा, तो आउटकम का डेफिनेशन क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज आउटकम. तो ये आउटकम है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, क्या टॉस उड़ाना, इसका आउटकम क्या है, हेड एंड टेल, दिस इज आउटकम. ओके, तो आउटकम समझ गया आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गया, छोटे छोटे टर्म्स है जिसका कोई नो नीड ऑफ लर्निंग डेफिनेशन, नो नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बुकिश लैंग्वेज. खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हाँ आउटकम वर्ड आया तो मतलब क्या, पॉसिबिलिटी बोला तो मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी बोला तो मतलब क्या. अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है नहीं. ओके, तो पहला प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन एक ही है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर इन द फॉलोइंग इवेंट. पॉसिबिलिटी पूछा है, ध्यान दीजिए, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी मतलब क्या, टोटल आउटकम, कितने आउटकम है, पूरे टोटल आउटकम. ओके, तो ये समझना बहुत ईजी है. जैसे कि अभी पहला एग्जाम्पल है,
और मैंने मे बी नाम थोड़ा अलग लिया होगा, लेकिन आपका टेक्स्ट बुक का ही है। विनीता नोज द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया, शी इज़ प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम। विनीता नाम की लड़की है, आप मान लो अपने आप को। ओके, इसको इंडिया के ये सब प्लेस पता है। ओके, इसको इनमें से एक प्लेस पे जाना है, तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर देयर? पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पॉसिबिलिटी। तो पहले उसको मुंबई पता है, फिर इंडिया गेट पता है, ताजमहल पता है, रेड फोर्ट पता है, पुणे पता है, गोवा पता है, साई बाबा टेम्पल पता है, चर्च पता है। तो इसको इनमें से एक प्लेस पे जाना है, तो पॉसिबिलिटी कितने है? तो हम गिन लेते हैं पॉसिबिलिटी। तो मुंबई 1, इंडिया गेट 2, ताजमहल 3, रेड फोर्ट 4, पुणे 5, गोवा 6, साई बाबा टेम्पल 7 और चर्च 8। मतलब देर आर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ना, हाँ ठीक है, जो भी है पॉसिबिलिटी, हाँ ठीक है, जो भी स्पेलिंग देख लीजिए, 8 है। देर आर 8 पॉसिबिलिटी। ओके, अभी इस क्वेश्चन को हम एक और अच्छे से बना सकते थे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा और अलग कैसा आ सकता, पूछ सकता था कि विनीता नोज द फॉर्मिंग प्लेस एंड सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इनमें से महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है, इसको इस प्लेस पे जाना है, इसका पॉसिबिलिटी क्या है? तो महाराष्ट्र कौन से? एक तो मुंबई है, एक है कौन सा है, पुणे है, 2 हो गए, और साई बाबा टेम्पल, ये 3 है। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो 3 पॉसिबिलिटी होते। तो देखिए इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, लगभग 8 से 9 मार्क्स का चैप्टर आता है एग्जाम में, बहुत ही विथ ऑप्शन ऑफ कोर्स, बहुत ही ईजी चैप्टर है, खाली स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए अगर आपको। तो क्वेश्चन है, एनी डे ऑफ द वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। ओके, तो मैं भी आपको नहीं दिख रहा, मैं रीड कर रहा हूँ। एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। तो कोई भी वीक का एक दिन रैंडमली सिलेक्ट करना है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आ रहा है बराबर। तो ये तो सिंपल है यार, 7 पॉसिबिलिटी है। कितना सिंपल है क्या नहीं? बताओ, 7 पॉसिबिलिटी है। मानते हो ना भाई? वीक में कितने दिन होते हैं? 7 बोला ना, वीक में 7 दिन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आ रहा है अवेलेबल? 52। 52 कार्ड में से एक कार्ड चूज करना है भाई, तो कितने पॉसिबिलिटी है? 52 है। अभी मैं क्वेश्चन और देता हूँ, इधर लिखा नहीं है लेकिन मैं बोलता हूँ, बताइए आंसर कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटी आर अवेलेबल टू सिलेक्ट वन ऑफ द सुर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, मतलब इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है, इसमें से मुझे एक सुर को सिलेक्ट करना है, तो कितने पॉसिबिलिटी है? 7 पॉसिबिलिटी है। सात ही सुर होते हैं ना, आई थिंक। सारे गमा पद निशा सारी है ना, 7 ही है ना। तो 7 में से एक करना है, तो 7 पॉसिबिलिटी। अभी मुझे करना है कि मुझे एक प्लैनेट सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट सेलेक्ट करना है, तो कितने पॉसिबिलिटी है? तो 8 पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी इज टोटल आउटकम, टोटल कितने आउटकम है? इतने पॉसिबिलिटी समझा आपको? अगर मैं पूछूँ कि आपको गोवा घूमने जाना है, यू वांट टू विजिट गोवा इन 2021, ओके, तो कौन से मंथ पे जाओगे? इसका पॉसिबिलिटी कितने पॉसिबिलिटी है? यू वांट टू गो वन ऑफ द मंथ, तो कितने पॉसिबिलिटी है? तो 12 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 12 मंथ होते हैं। तो जनरल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि वीक में कितने दिन होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं, या फिर दिन कितने होते हैं? दिन 365 होते हैं। ओके, या लीप ईयर रहा तो 366 होता है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे काम आएगा। ओके, 365, 366, ये जनरल नॉलेज होना चाहिए। ओके, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। ओके, या फिर ये जैसे कि सूर्य 7 सूर्य होते हैं, सारेगामा जो भी है। ओके, इसके बाद बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज हल्का-हल्का होना चाहिए, और रीड करने आना चाहिए। पर ये चैप्टर को आराम से डील कर सकते हो। तो दिस इज़ 5.1। ओके, कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बताना है, कितने टोटल पॉसिबिलिटी है बताना है। ओके, थैंक यू।